So we'll go ahead with next question. Under which of the following conditions is the law of PV equal to RT obeyed most closely by real gas? तो आपको if you remember ideal gas equation PV equal to nRT और real gas equation they are not same. लेकिन under certain condition real gas also obeys ideal gas equation and those conditions are low pressure and high temperature. So under low pressure and high temperature real gases most closely obey ideal gas equation. Next question. The temperature of an open room मतलब open to atmosphere of volume 30 meter cube increased from 17 degrees Celsius to 27 degrees Celsius due to sunshine. So because of sunlight, the temperature increases from 17 degree to 27 degrees Celsius. The atmospheric pressure in the room remains 1 atmospheric pressure. 1 into 10 raised to 5 मतलब 1 atmospheric pressure होता है. If Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf minus Ni is. Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating. So, what is the difference between Nf and Ni? क्या आएगा? How do you solve this question? How do you solve this question? अरे सिंपल है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मान सकते हो if you want. You can also say this is number of moles. क्योंकि number of molecules and number of moles they are directly proportional to each other. सिर्फ डिफरेंस आता है only in Avogadro number. Number of moles क्या होता है? Number of molecules upon Avogadro number. तो तुम इसको number of moles भी अगर imagine कर लेते हो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So you know what is N? It is PV by RT. आपको पूछा है N final minus N initial. इन्होंने स्मॉल n को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, लेकिन मैं फिलहाल नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम करके सॉल्व करके देखता हूँ. तो ये आ जाएगा T final V final अपॉन R T final माइनस P initial V initial अपॉन R T initial. प्रेशर चेंज हुआ क्या? नो. वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नो. आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हुआ? टेम्परेचर. तो पीवी अपॉन आर टी फाइनल माइनस पीवी अपॉन आर टी इनिशियल. तो पीवी बाय आर बाहर आ गया, कांस्टेंट है. 1 अपॉन टी फाइनल माइनस 1 अपॉन टी इनिशियल. गुड. So just substitute the values and you know what is the value of pressure 10 raised to 5. How much is the volume? 30. What is the value of R? 25 by 3 मतलब 8.31. तो फिलहाल 25 by 3. What is final temperature? Final temperature 27 मतलब 300 Kelvin, 300 Kelvin minus 290 Kelvin क्योंकि 17 डिग्री is to 90 Kelvin. इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 3 जाएगा ऊपर 3 into 10 raised to 5 into 30 upon 25. ये हो जाएगा 290 minus 300 मतलब minus 10. 300 into 290. वेरी गुड. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लो. ये और ये जीरो कैंसिल कर दिया, ये 1 जा और ये 10 जा कर देगा. गुड. हो गया. तो ये आ गया आपका 3 into 10 raised to 5 मतलब 100 into 10 raised to 3. लिख सकते हैं ना ऐसा? अपॉन 25. ये माइनस साइन बाहर लिख दिया मैंने. 10 into 29. एक काम और करता हूँ, ये 1000 को भी 10 into 10 raised to 2 कर देता हूँ, because I just want to cancel this 10 1 जा and 4 जा. 3 4 जा is 12. तो minus 12 अपॉन 29 into 10 raised to 2. आंसर देख लो आसपास में है क्या? नहीं है ना? नो नहीं है ना? नहीं है. तो फिर what I told you कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है. यस वेट करेंगे, डोंट वरी. ये नंबर ऑफ मोल्स लिखा है मैंने. तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में नोटेशन चेंज कर देता हूँ जस्ट अवॉइड कंफ्यूजन. इफ कैपिटल Ni and capital Ns are the number of molecules in the room before and after heating, then the difference in the number of molecules is
कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा आंसर। वैसे 12/29, हाउ मच इज दैट रफली अप्रोक्सीमेटली? 12/30 मान लो। 12 2 is 24, 12 2.5 is 30, तो 1/2.5, 1/2.5 is 10/25, 10/25 is 2/5, 2/5 is 0.4, तो ये 0.4 है वो नंबर, दिस इज 0.4 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। वैसे बाय द वे तुमने यहाँ पे क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ फाइनल मोल्स माइनस नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, वेरी गुड, पक्का। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी आएगा -12/29 इंटू 10⁻²। बट देन इसमें से Na कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो यू हैव n फाइनल माइनस n इनिशियल इक्वल्स टू -12/29 इंटू 10⁻²। ये 0.4 है, रफली याद रखना, दिस इज 0.4 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। तो n फाइनल माइनस n इनिशियल इक्वल्स टू -12/29 इंटू 10⁻² इंटू एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.022। तो 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। गुड। ये कितना था? 0.4 इंटू 6 2.4, तो -2.4 2.5 और 10⁻² और 23 मतलब 25, तो -2.5 इंटू 10⁻25 आ गया आंसर। मैंने इसलिए बोला था थोड़ा सा नंबर्स पे ध्यान देना, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 12/30 एंड 12/30 इज 1/2.5 है ना, और ये 1/2.5 मतलब 10/25 मतलब ये 0.4 था। तो पूरा सॉल्व करने के बाद, एग्जैक्ट सॉल्व करने के बाद यू विल गेट -2.5 इंटू 10⁻25। तो आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो आंसर की मैच हो रहा है जो ऑप्शन है, आंसर जो है आंसर की राइट होना चाहिए। वैसे ए है क्या? है गुड। वैसे इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि आंसर नेगेटिव आने वाला है। व्हाई इट वॉज सो ऑब्वियस? प्रेशर क्या था? कांस्टेंट, बोला ना प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम द रूम इज फिक्स्ड एंड गैस मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग। वॉल्यूम फिक्स है और ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स विल start to go away from each other और कुछ amount of gas will go out। अगर कुछ amount of gas is going out इसका मतलब number of molecules are decreasing, तो ये तो पक्का था कि आंसर में माइनस आने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी यही दो आंसर आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इट्स वेरी सिंपल। cooking gas containers are kept in a lorry moving with uniform speed. The temperature of the gas molecule inside will remain same। देखा क्या सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, है ना? घर में गैस खत्म हो गया तो क्या करते हो? बुक करते हो, तो फिर वो एक रिक्शा में या एक टेम्पो में भर के लाते हैं। कुकिंग गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंटेनर्स सिलेंडर आर केप्ट इन लॉरी टेम्पो moving with uniform speed, so that tempo is moving with uniform speed। The temperature of the gas molecule inside will have no effect, it remains same। ये क्वेश्चन तुमने कल या परसों भी किया था, वो रॉकेट के अंदर एक कंटेनर था, उसके अंदर गैस था, वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग तरीके से पूछा है, remains same। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecules equal to oxygen molecules at 47 degree Celsius? जोक है ये। Do you remember what is the formula for CRMS? Under root of 3RT by m dash, where m dash is molecular weight। बराबर याद है ना? बोर्ड्स प्रिपरेशन में बहुत बार यूज किया है फॉर्मूला, और उन्होंने बोला है एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन वेलोसिटी ऑफ गैसेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल, मतलब ये कांस्टेंट है।
ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ टी बाय एम डैश इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि टी बाय एम डैश इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एम डैश। इसका मतलब क्या होता है कि टी वन बाई टी टू इक्वल्स टू m1 बाय m2, मतलब t1 इक्वल्स टू m1 बाय m2 into t2। m1 is the molecular weight of gaseous hydrogen, that is 2। m2 is oxygen, that is 32। t2 is the temperature of oxygen, 47। 47 plus 273 is 320। 320 होता है ना, 320 वन एंड टेन, तो कितना 20 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a mixture of 2 moles of helium gas, atomic mass of helium is 4 amu, and 1 mole of argon gas, atomic mass is 40 amu, is kept at 300 Kelvin in a container। The ratio of RMS speeds is, सिंपल सा क्वेश्चन है। यू नो व्हाट इज RMS स्पीड, अभी बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ 3RT by m dash। You have 2 moles of helium and you have 1 mole of argon। Both of them are kept in a container और कंटेनर का टेम्परेचर क्या है 300। इसका मतलब बेसिकली T तो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, so what is the ratio of RMS speeds? How do you find out ratio of RMS speeds in this case? Proportional to what? Inversely proportional to molecular weight, ठीक है। What about number of moles? What about number of moles? Does it matter really? Yes, no? फॉर्मूला देख के बताओ ना। नहीं, पक्का नहीं। नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड ही नहीं करता वो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। तो CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर इज सेम। तो CRMS किसका, CRMS हीलियम का, हीलियम अपॉन CRMS अर्गन, अर्गन इसका रेशियो पूछा है। तो अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अर्गन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, सिंपल है ये। अर्गन का कितना दिया है 40, इसका कितना है 4, कितना है √10, √10 कितना होता है 3.16, 3.16, 3.16। बाय द वे जस्ट अ ट्रिक, ये तो ठीक है, तो आंसर आ गया, आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो हाउ टू फाइंड आउट रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना, तो कैसे फाइंड करते हैं पता है? पता है, एक ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है। इसके सबसे पास में कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है 9, तो 9। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 1, तो +1, ऐसा। और यू नो रिमेंबर दिस 9, लेकिन 9 नहीं, 9 का रूट, 9 का रूट 3। 10 से नियरेस्ट कौन है 9, उसका रूट कितना है 3। डिफरेंस कितना है 9 और 10 में 1, तो 3 का डबल कितना होता है 6। यू नो व्हाट इज 1/6? 0.16, तो इट इज 0.16, तो ये आ गया 3.16, 2.16। And you can in fact use that particular trick to calculate square root of any number. Example, for example, what is square of 6? 36. What is square of 7? 49. What is square of 6.5? 42.25। अब अगर मेरे पास ऐसा नंबर आ जाता अंडर रूट ऑफ 40, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 6। 36 का रूट 6, डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 36 इज 4, डिफरेंस इज 4, राइट। और ये 6 इसका डबल 12, तो कितना हो गया 6 + 1/3, व्हाट इज 1/3? 0.33, तो 6.33।
6.33 चेक कर लो, चेक ये आएगा रूट ऑफ 40 इसके आसपास, ये आएगा आपका 40 का रूट 6.3245, तो 6.3245 6.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Cp and Cv denote specific heats of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively, then what? Then what? Cp minus Cv equals to R. कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। ये इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट है। अगर Sp माइनस Sv पूछा तो आंसर अलग आता। उस केस में क्या होगा? Sp माइनस Sv इक्वल टू, याद है क्या? R अपॉन m नॉट। R अपॉन m नॉट। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? 28। तो उस केस में क्या आता? R बाय 28। लेकिन यहाँ पे Cp लिखा हुआ है। Cp क्या होता है? मोलार। तो मोलार के केस में हर एक गैस के लिए यू हैव Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये हर गैस के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, an ideal gas undergoes a quasi-static process. You remember what is quasi-static? Very slow. The changes in the values of thermodynamic variables is very slow. So an ideal gas undergoes a quasi-static reversible process in which its molar heat capacity C remains constant. If during this process the relation of pressure and volume is given by PV raised to n equals to constant, then n is given by, do you remember मैंने आपको बताया था PV रेज टू n इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर हो तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। बताया था ना? ऐसा बताया था कि नहीं? अरे बताया था मैंने ये। PV raised to alpha equals to constant. I have told you. C equals to CV plus R upon 1 minus अल्फा। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इस पे। मैंने ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं। चलो वापस बता देता हूँ। व्हाट इज गामा? गामा अल्फा नहीं, गामा। व्हाट इज गामा फॉर अ मोनोटॉमिक गैस? 5/3 1.66। व्हाट इज गामा फॉर अ रिजिड डायटोमिक गैस? 7/5 मतलब 1.4। What is gamma for a non-rigid diatomic gas? 9/7 मतलब 1.2। मैंने आपको ये बताया था कि PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट कब यूज करते हो? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मतलब विच इज अ सडन प्रोसेस, और सडन प्रोसेस में कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, तो आइसोथर्मल तो नहीं है। तो PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज होता है, और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट कहाँ यूज होता है? फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो V का पावर 1 तो आइसोथर्मल, और V का पावर 1 छोड़ के 1.2 1.4 1.6 तो एडियाबैटिक, बराबर। लेकिन अगर V का पावर 1 नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है 1 छोड़ के, जैसे PV रेज टू 2 PV रेज टू 3 PV रेज टू 4, तो मैंने बताया था ये फॉर्मूला यूज होता है। And I have told you PV raised to alpha equals to constant I, so you have to know that C equals to CV plus R upon 1 minus alpha। यहाँ पे अल्फा को क्या बोला है? बोला है कि नहीं? तो अभी पूछा n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये इसको इधर लेके आ गया। C माइनस CV इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस n। मैंने नाम भी दिया है इस प्रोसेस को, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था ये। इसी जन्म में, इसी क्लास में, इसी हफ्ते में सीखा है। यू डोंट रिमेम्बर? थोड़ा घर पे जाके रिवाइज किया करो। एनीवेज, हो गया ना? क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? n। तो इसको यहाँ लेके आओ, 1 माइनस n R अपॉन C माइनस CV। वेरी गुड 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 गुड। क्या चाहिए तुमको? n को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ। 1 माइनस R अपॉन C माइनस CV इक्वल्स टू n। Is it in terms of R? नहीं, it is in terms of Cp and Cv and C. So do you remember Meyer's relation? Cp minus Cv equals to R. तो R की जगह पे लिख लूंगा मैं Cp minus Cv, Cp minus Cv upon C minus Cv equals to n cross multiply C minus Cv minus Cp minus minus plus
बराबर, राइट, अपॉन सी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन, सी वी कैंसल, तो सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन। कहाँ पे ऐसा? ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझेगा कैसे कि पॉलीट्रॉपिक है? आइसोथर्मल के लिए क्या था? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक के लिए क्या था? पीवी रेज टू गामा। यहाँ पे गामा बोला है क्या? नहीं। तो ना वन है ना गामा है, कुछ और ही है। तो कुछ और ही है तो कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gaseous mixture consists of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen. The ratio Cp by Cv of the mixture is, ये आपका CET का PYQ, दिस इज द PYQ ऑफ CET। मैंने आपको बताया था एक बार कि JEE मेंस के इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन डायरेक्टली MST CET में आते हैं। तो ये AIEEE और यही क्वेश्चन CET। गैसियस मिक्सचर, तो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, उसमें से एक है हीलियम 16 ग्राम, एक है ऑक्सीजन विच इज 16 ग्राम। द रेशो Cp by Cv ऑफ द मिक्सचर इज, मतलब आपको ग्यामा पूछा है मिक्सचर का, तो ग्यामा जब फाइंड करना होता है ना मिक्सचर का, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब आप दो गैसेस को, तीन गैसेस को मिक्स करते हो, तो उस केस में मिक्सचर का ग्यामा, गैस के मिक्सचर का ग्यामा, क्योंकि मैंने अगर पूछा होता मोनोएटॉमिक गैस का ग्यामा क्या है? 5/3। मैंने अगर पूछा होता रिजिड डायटोमिक का कितना है? 7/5। तो इसमें से हीलियम कौन है? मोनोएटॉमिक है, और ऑक्सीजन कौन है? डायटोमिक है। लेकिन दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर का गामा बताओ आप। तो उसके लिए फॉर्मूला है, यू नो, एंड डू यू नो एनी वन ऑफ यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? पता है क्या? नहीं? N1 gamma 1 अपॉन gamma 1 माइनस 1 प्लस N2 gamma 2 अपॉन gamma 2 माइनस 1। ऊपर जो टर्म है वैसा का वैसा नीचे, सिर्फ ऊपर के जो टर्म में जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर N1 gamma 1 और N2 gamma 2। तो N1 gamma 1 और N2 gamma 2, इसमें से सिर्फ gamma gamma गायब कर दो। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मिक्सचर। तो याद कैसे रखते हैं? याद रखना ही क्या है, फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वही राइट हैंड साइड पे होना चाहिए कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ही होता है ना, टाइम इक्वल टू टाइम ही होता है ना। तो रेशियो ऑफ Cp एंड Cv शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। तो थिंक डायमेंशनली, ये चारों टर्म को भूल जाओ, फिलहाल एक पे फोकस करो। लेट अस जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट वन। क्या है? N1 gamma 1 अपॉन gamma 1 माइनस 1। इधर कौन था? गामा। उधर कौन है? N गामा अपॉन गामा माइनस 1, N गामा अपॉन, लेकिन गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए? गामा। तो क्या नहीं होना चाहिए? N अपॉन गामा माइनस 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन है, तो क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। तो याद रहेगा फॉर्मूला, गामा मिक्सचर इज N1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 वोल अपॉन N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। बराबर? याद रहेगा? पक्का? नो कंफ्यूजन? सर, what is the number of moles of first gas? By the way, first gas is helium gas and the second gas is oxygen gas. So what is number of moles of helium gas? Number of moles is nothing but mass upon molecular weight. सही है ना? वेरी गुड। तो पहले गैस का नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1 M1 by capital M1, N2 M2 by capital M2. What is mass of helium given to you? 16. What is molecular weight of helium? 4. कितना होता है? 4. कितना होता है? 4. तो number of moles कितने हो गए? 4. What about N2? How about N2? How about N2? How about N2? 16 upon what is molecular weight of oxygen? 32. तो ये कितना हो गया? 1/2. Good. And what about gamma 1? Gamma 1 मतलब हीलियम, हीलियम इज मोनोटॉमिक, तो कितना? 5/3 and gamma 2 is 7/5. Put all these values in equation number 1. So what you will get is gamma mixture equals to N1 कितना था? 4
गामा वन कितना है 5/3 अपॉन 5/3 -1 प्लस व्हाट इज n2 हाउ इज n2 1/2 गामा 2 मतलब 7/5 अपॉन 7/5 -1 होल अपॉन मैंने बताया ये का ये एज इट इज उठाया क्या यस इसमें से गामा गामा उड़ा दो उड़ा दिया क्या यस अब इसको करो सॉल्व तो ये आ गया आपका 4 × 5/3 अपॉन व्हाट इज 5/3 -1 2/3 प्लस ये हो गया 1/2 7/5 और 7/5 -1 इज 2/5 अपॉन 4 अपॉन हाउ मच 2/3 प्लस 1/2 अपॉन हाउ मच 2/5 वेरी गुड 3 3 5 5 गया 1 जा 2 जा कितना हो गया ये कितना हो गया 10 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 6 1 जा एंड 2 जा दिस इज 6 प्लस 5/4 अब यहाँ पे छोटी सी भी गलती हुई कैलकुलेशन में गए आंसर वेरी नियर बाय तो लुक होता क्या है कभी कभी घाई में होता है 6 4 जा 24 प्लस 5 31 29 घाई घाई में 31 लिख लिया आंसर कुछ और मिलेगा तो ये आ गया आपका 40 10 × 4 40 प्लस 7 कितना 47/4 ठीक है ना 1.7 करना है वैसे भी कर सकते हो लेकिन ठीक है 47/4 जैसे 24 प्लस 5 29/4 तो 47/29 गलती से भी नीचे 31 लिखा तो आंसर अलग आएगा और 29 लिखा तो आंसर अलग आएगा देखो 47 डिवाइडेड बाय कितना है 1.62 अगर घाई घाई में मैंने गलती कर दी होती तो क्या आता 1.51 मतलब 1.54 के आसपास तो ये 1.62 है आंसर 1.62 ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ओके तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक रफ आइडिया अबाउट व्हाट द आंसर कैन बी दो गैसेस थे एक था मोनोटॉमिक एक था डायटोमिक मोनोटॉमिक का गामा क्या होता है 1.66 1.67 डायटोमिक का 1.4 बराबर गुड राइट नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं हीलियम मतलब मोनोटॉमिक के और कम किसके है डायटोमिक के राइट तो वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द गैस इज मोनोटॉमिक है ना 4 मोल वर्सेस हाफ मोल मतलब आपका जो भी आंसर है 1.66 के टूवर्ड्स आना चाहिए 1.62 क्योंकि ज्यादा गैस कौन सा है मोनोटॉमिक ज्यादा 4 मोल्स है और डायटोमिक के सिर्फ हाफ मोल्स है तो द बिहेवियर ऑफ द गैस ओवरऑल विल बी अलाइन टूवर्ड्स द मोनोटॉमिक टाइप अगला क्वेश्चन गलत क्वेश्चन देखो ये भी एक ट्रिक होता है ट्रिक मतलब दिस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत है पहले भी एक क्वेश्चन था जहां पे मैंने आपको बताया कि ये गलत दिया हुआ है लुक हियर आई टोल्ड यू दिस इज रॉन्ग ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स के नोटेशन को मिक्स कर दिया तो क्वेश्चन गलत था हमने रेक्टिफाई कर लिया अब एक क्वेश्चन भी गलत है कौन सा ये क्वेश्चन क्यों गलत है देखो CP and CV are specific heats at constant pressure and constant volume respectively. It is observed that CP minus CV is A for hydrogen gas and CP minus CV is B for nitrogen gas. है ना? CP and CV are specific heats at constant pressure and constant volume. For hydrogen, what is CP minus CV? A. For nitrogen, it is B.
बी। लेकिन मैंने अभी तो बताया द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक हीट, कौन सा स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर एनी टाइप ऑफ गैस इज ऑलवेज आर, इट इज ऑलवेज आर। तो Cp माइनस Cv हाइड्रोजन के लिए या नाइट्रोजन के लिए क्या होना चाहिए था, आर। और ए लिखा है तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ए। यहाँ पे क्या लिखा है, बी, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, बी, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो आंसर क्या आना चाहिए, सी, जो नहीं है क्या आंसर सी, नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। The question is wrong. They should have said SP, SV, SP, SV, SP and SV. अब आएगा आपका आंसर राइट। तो डू यू रिमेंबर SP minus SP for any type of gas is R upon m naught, when m naught is molecular weight. अब हमारे पास दो गैसेस है, कौन से दो गैसेस है, विच टू, अभी तो बताया मैंने, क्वेश्चन में है ना, कौन से दो गैसेस है, एक है हाइड्रोजन और एक है नाइट्रोजन। तो ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए Sp माइनस Sv इक्वल्स टू क्या आएगा, R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच, 2, क्या आएगा, 2। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड फॉर नाइट्रोजन कितना आएगा, कितना आएगा, नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा, 28, है कि नहीं, वेरी गुड। ये इसको बोला था ए, बोला कि नहीं ए, और इसको क्या बोला है बी। तो ए तुमको क्या मिल गया, R/2, और तुमको बी क्या मिल गया, R/28। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ए अपॉन बी इज R/2 अपॉन R/28। मतलब R 1 जा एंड 14 जा, 14 गया ऊपर, तो क्या मिल गया, A/B इक्वल्स टू 14। तो A क्या आ गया, 14B, तो A इक्वल्स टू 14B, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैच होता है क्या आंसर, यस, गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kilogram of a diatomic gas is at a pressure of 8 into 10 raised to 4 Newton per meter square. The density of the gas is 4 kilogram per meter cube. What is the energy of the gas due to its thermal motion? वैसे तुमको एनर्जी ऑफ गैस तो पता ही है, 3/2 PV। अब बोलोगे हमको तो 5 पता है, 3/2 PV भी पता है हमको, 3/2 P पता है हमको, 3/2 RT पता है हमको, हमको 3/2 KBT पता है हमको, और एक पता है 3/2 RT by m naught। 3/2 PV is the energy of the total gas. 3/2 P is energy per unit volume. 3/2 kBT is energy of each molecule of gas, बराबर ना। 3/2 RT is energy of 1 mole of gas, and 3/2 RT by m naught is the energy per unit mass of the gas, मतलब पर किलोग्राम। तो एग्जैक्टली कौन सा यूज करना, कोई भी नहीं यूज होगा इसमें से, क्यों नहीं होगा ना, तुमको तुमको प्रेशर पता है, प्रेशर पता है, यस। वॉल्यूम दिया है, नो, लेकिन क्या दिया है, 1 kg, और क्या दिया है, डेंसिटी, तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम मिल जाएगा, प्रेशर दिया है, एनर्जी पूछा है, 3/2 PV, 3/2 PV, गुड। तो एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन, और गैस कौन सा है, डायटोमिक, यहाँ भी गड़बड़ होती है, दिस इज ऑल्सो वेयर यू मे गो रॉन्ग। दिस इज अ डायटोमिक गैस, यू कैन नॉट राइट ऑन 3/2, इट इज ऑलवेज F/2 PV, where F is degrees of freedom, तो दिस विल बी 5/2 PV। और V चाहिए, यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो व्हाट इज वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, तो 5/2 P मास अपॉन डेंसिटी। तो अभी हो गया सॉल्व, क्योंकि प्रेशर पता है 8 × 10⁻⁴ है, क्योंकि तुमको मास भी दिया है 1 kg और तुमको डेंसिटी भी दिया है 4, हो गया सॉल्व। नीचे 8 है, ये भी 8 है, तो आंसर आएगा 5 × 10⁻⁴ जूल, 5 × 10⁻⁴ जूल। लेकिन एक बार वेरीफाई कर लो, क्या है ऑप्शन नंबर बी है क्या, बी है ना, कोई कई जगह पे वो मोनोटॉमिक समझ के सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, 3 × 10⁻⁴।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए नोटेशन चेंज कर दिए। क्या चेंज किया देखो, थ्री परफेक्ट गैसेस मतलब थ्री आइडियल गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स T1 T2 एंड T3 आर मिक्स्ड। तुमने तीन गैसेस को मिक्स कर दिया। पहले गैस का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का T2 था, तीसरे का T3 था। द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर M1 M2 and M3 एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर N1 N2 एंड N3। हम लोग स्मॉल एन यूज करते हैं मोल्स के लिए, कैपिटल एन यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। इन लोगों ने तुमको कंफ्यूज करने के लिए नोटेशन चेंज कर दिया। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस केस। अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, व्हेन यू से नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब तुम तीन गैसेस को मिक्स करके छोड़ दोगे फॉर अ व्हाइल, तो गैसेस आपस में एनर्जी एक्सचेंज करके दे विल रीच इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट। तो कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ भी लगेगा यहाँ पे। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, वेरी गुड। सबसे पहले यू शुड नो दैट यहाँ पे तुम बॉयल्स लॉ यूज करने वाले हो। यूजिंग बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? PV equals to constant, मतलब P initial V initial equals to P final V final, बराबर, करेक्ट। लेकिन डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट प्रेशर और इन दैट केस वॉल्यूम? नहीं। तो PV equals to nRT, nRT। तो nRT इनिशियल इनिशियल, nRT फाइनल एंड फाइनल, सही है। लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ तो n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल n हम किस लिए यूज करते हैं? मोल्स। तो n डैश एंड n डैश, तो हमारे केस में n डैश इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। r क्या हो गया? कैंसल। तो n इनिशियल डैश t इनिशियल इक्वल्स टू n फाइनल डैश t फाइनल, ये आ गया फॉर्मूला। इनिशियली तीन गैसेस अलग अलग थे, तो N1 डैश T1 प्लस N2 डैश T2 प्लस N3 डैश T3 इक्वल्स टू, उसके बाद सब हो गए मिक्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश डैश डैश, और T फाइनल इज T। T फाइनल को T फाइनल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, T फाइनल, ओके, गुड, करेक्ट, राइट। वी आर ऑलमोस्ट देयर, पहुंच ही गए, आ ही गए, हो ही गया। सिर्फ डैश 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 हटा दोगे तो आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बोला कि डैश 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 क्यों हटाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये N1 डैश इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोला है तुमने? N1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट, करेक्ट। तो अगर थोड़ा सा और स्मार्टली काम करते, जो करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न, ऐसा लिखो ही मत, यहीं पे तुम बोल दो नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यहीं पे कैंसल आउट कर दो उसको। हो गया? हो गया। तो अभी तुम्हारा काम आसान हो गया, तो अभी तुम डायरेक्ट लिख दोगे N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 equals to N1 plus N2 plus N3 into T final. Therefore, T final equals to N1 T1 plus N2 T2 plus N3 T3 upon N1 plus N2 plus N3. Option number P. Done. Next question. A 15 gram mass of nitrogen gas, a 15 gram mass of nitrogen gas is enclosed in a vessel at a temperature of 27 degrees Celsius. Amount of heat transferred to the gas so that the RMS velocity of the molecules is doubled is about, और R की वैल्यू दी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या क्या पैरामीटर दिए है? मास दिया है, गैस कौन सा है वो बताया है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और क्या बोला है? टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन। So you have number of moles, you have T, remember this temperature. How much should be the amount of heat transferred
so that the RMS velocity मतलब V should become double. करेक्ट. तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड कैसे फाइंड करोगे? व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? सिंपल है. दिस इज एक्चुअली सिंपल. सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं है. इट इज जोक. अरे इट इज टू सिंपल. चलो ठीक है, आई हेल्प यू आउट. सबसे पहले मैंने आपको कल ही बताया था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर ऐसे नहीं बोला होता है और ये भी नहीं बताया कि सिलेंडर में पिस्टन है कि नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या लेते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम. कल ही तो बताया था. कहीं बोला है क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं. तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम? Do you remember N civility? N civility. Do you know nitrogen is diatomic? Yes. तो CV for a diatomic is 7R/2. कितना? 7R/2. पक्का ना? पक्का ना? 5R/2. मोनोटॉमिक के लिए CV 3R/2, CP 5R/2. रिजिड डायटोमिक के लिए CV is 5R/2. तो यहाँ पे क्या आएगा? 5R/2. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वो तो मिल जाएगा. तो ये तो मिल जाएगा. आपको CV भी पता है. मतलब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत है? इसकी चेंज इन टेम्परेचर. उसमें से भी तुमको इनिशियल टेम्परेचर पता है. हाउ मच? 300 केल्विन. और क्या फाइंड करोगे? फाइनल टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ओनली थिंग दैट यू नीड इज द वैल्यू ऑफ T2. नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट T2? You should know that CRMS is directly proportional to under root of temperature. So you know that CRMS square is proportional to temperature. So you know that T2 by T1 is C2 by C1 का square. और तुमको तो बोला ही है that the speed should be double. डबल बोला है कि नहीं? बोला है कि नहीं? डबल होना चाहिए, है ना? डबल. तो C2 by C1 कितना आ गया? 2 आ गया. Therefore T2 by T1 कितना आ गया? 2 का स्क्वायर आ गया, है ना? तो T2 कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ T1. कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ T1. अब ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके तुमको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ हीट. तो फ्रॉम 1 and 2, heat supplied equals to mass upon molecular weight into CV. T2 is 4T1 minus T1, that is equals to 3. So mass upon molecular weight CV, this is 3T1. Mass is how much? 15. Molecular weight of nitrogen is 28. CV 5R/2, 3 into T1. What is the value of T1 by the way? 300. तो 15/28 into 5/2. What is R? 8.3. मत लिखना. 25/3 into 3 into 300. वेरी गुड. 3 गया गया गया. बराबर. बाकी सॉल्व करो. करो सॉल्व. बताओ. You're thinking. You're thinking about the calculations. Okay. 1 za 150 za. How about this? 14 za 75 za. आगे. बाबा रे, कैलकुलेशन के मामले में सो डिफिकल्ट. 15 5 जा 75. 75 into 75 is 5625. 75 का स्क्वायर 5625 होता है कि नहीं? पक्का होता है क्या? 7 8 जा कितना होता है? 56 होता है. तो 75 का स्क्वायर कितना हो गया? 5625. कितना हो गया? 5625. अच्छा, तुमको अप्रोक्सीमेट करना है तो वो बता देता हूँ. तुमको एग्जैक्ट नहीं करना, कोई बात नहीं. 15 इज रफली 1. कितना आ गया? 1. छोड़ दो उसको. फिर 25 into 5 125, है ना? 125 और वो 75. 125 into 75. 125 into 75 मत करो ना तुम 125 into 80 कर लो, क्योंकि 125 8 1000 होता है. 1000 बराबर.
तो 125 8 जा 10,000, तो आंसर 10,000 के आसपास आएगा, 10,000 के आसपास आएगा, दैट इज 10 किलो जूल। आगे आंसर। तो डायरेक्ट डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अभी यू कैन नॉट डू दिस स्कूल वाला थिंग 25 इंटू 75। मैं तुमको फिर भी जस्ट अ प्रूफ कि सच में ऐसा होता है। 15 इंटू क्या था 5 था क्या, ऐसा 15 इंटू 5 था क्या हमारे पास, 15 इंटू क्या था 5 और इंटू क्या था 75 और इंटू क्या था 25 भी था, भूल गया 25 को। बराबर था कि नहीं, था कि नहीं, और डिवाइड का क्या था, तो फिर ये क्या आ गया 10,044। तो मैंने भी तो वही बताया 10,000 के आसपास, तो ये आंसर आ गया 10,000 के आसपास। 10,000 मतलब 10 किलो जूल, 10 किलो जूल, 10 किलो जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैलकुलेशंस को लेके अभी भी यू हैव टू वर्क अलॉट, अलॉट अलॉट, मतलब तुमको रफ रफ कैलकुलेशंस करते आने चाहिए, दैट इज द बेसिक आइडिया। 15/14 को मैंने 1 मान लिया था, फिर 25 इंटू 5 दैट इज 125 इंटू 75। अब 125 इंटू 75 करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो नियरेस्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 दैट इज 80 या फिर 70। 80 या 70, तो मैंने 80 मान लिया, और 80 मानने का रीज़न था क्योंकि 125 8 जा मुझे पता 1000 होता है, तो 125 80 जा 10,000 होगा, तो योर आंसर विल बी नियर टू 10,000 दैट इज 10 किलो जूल। अगला क्वेश्चन। 2 kilogram of a monatomic gas is at a pressure of 4 into 10 raised to 4 Newton per meter square. The density of the gas is 8 kilogram per meter cube. What is the order of energy of the gas? अभी तो देखा था हमने, अभी तो देखा था एनर्जी ऑफ गैस, क्या लिखा था आपने, F/2 PV, where F is degree of freedom, कौन सा गैस है, तो 3/2। हाउ मच इज द प्रेशर, चलो प्रेशर नहीं पता, प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता। हाउ डू फाइंड आउट वॉल्यूम, वो भी बताया था, मास अपॉन डेंसिटी, हो गया। F की वैल्यू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर 4 into 10 raised to 4, how much is the mass 2, 2 बोला है ना, and density is 8। वेरी गुड, गुड गुड। तो ये और ये कैंसल, तो 1.5 into 10 raised to 4, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 raised to 4, 10 raised to 4, 10 raised to 4। आप बोलोगे 10 raised to 5 या 10 raised to 3 क्यों नहीं, तुमको 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर याद है, जब तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो नंबर को, मतलब a into 10 raised to n, तो ये a की वैल्यू हमेशा 0.5 से बड़ी और 5 से कम होनी चाहिए। हमारे पास जो नंबर आया 1.5 वो ऑलरेडी उस विंडो में है, मतलब 0.5 और 5 के बीच में है, तो 10 का जो भी पावर आएगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो 10 raised to 4। डन। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो 11th के पहले चैप्टर में सीखा था वो भी यहाँ काम में आता है। Significant figures, do you remember rules of finding of significant figures? Yes, बताओ तो। Yes, all the non-zero digits are significant। तो नॉन जीरो का तो टेंशन ही नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है ही, टेंशन है जीरो का, और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। ऑल द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऑल द ट्रेलिंग zeros to the right of decimal are significant। Trailing zero in a whole number without decimal shown is not significant, trailing zero in a whole number with decimal shown is significant। if you are writing the number in scientific notation, तो जो साइंटिफिक नोटेशन में जो a होता है सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इसमें से आते हैं, 10 to the power do not contribute in significant figure। हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दो टाइप से सॉल्व होता है, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। The gas mixture consists of 3 moles of oxygen and 5 moles of argon at temperature T। So you have a mixture of gas which has 3 moles of oxygen which is a diatomic gas and 5 moles of argon which is a monatomic gas at temperature T
कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड्स, मतलब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो रिजिड डायटोमिक है ऐसा मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, मतलब वाइब्रेशन कंसिडर करना है क्या, नहीं, वैसे भी नहीं होता वो तो। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो देयर आर टू मेथड्स, आई विल टेल यू बोथ ऑफ देम, दोनों काम में आएंगे आपके। जस्ट फॉर नॉलेज यू जस्ट नीड टू नो बोथ ऑफ देम। मेथड वन, total energy, total internal energy is internal energy of the first gas which is oxygen and of the second gas which is argon. So find out what is the energy of oxygen, F by 2 RT. Answer is in terms of RT, that is by F by 2 RT. ऐसे होता है ना, गलत है, F by 2 nRT. This is for 1 mole of gas, F by 2 RT होता है 1 मोल, और n मोल्स के लिए F by 2 nRT, तो F by 2 nRT। मैं बार बार तो बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, टोटल एनर्जी 3 by 2 PV, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 3 by 2 P3 जब मोनोएटॉमिक होगा तो। अदरवाइज इफ यू वांट टू जनरलाइज इट, what is the total energy, F by 2 PV, what is energy per unit volume, F by 2 P, what is energy of 1 mole, 1 molecule, F by 2 kBD, what is the energy of 1 mole, F by 2 RT, what is the energy per unit mass, F by 2 RT by m naught, करेक्ट। वो एक एक मोल का था ना, वो एक, तो n मोल के लिए कितना आएगा, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3, एंड ऑक्सीजन इज डायटोमिक, तो 5 by 2 और 3 और RT, तो कितना हो गया ये 15 by 2 RT हो गया। What about the second type of gas, argon? You have again F by 2 and RT. Argon is monoatomic, तो 3 by 2 and number of moles कितने दिए हुए इसके, 5 RT, तो कितना हो गया 15 by 2 RT। तो टोटल कितना हो गया, एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस एनर्जी ऑफ अर्गन, इट इज सिंपल, 15 by 2 RT प्लस 15 by 2 RT इज 15 RT। तो आंसर क्या आ गया, 15 RT, तो आंसर इज 15 RT, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मेथड नंबर 1, बट यू आल्सो हैव मेथड नंबर 2। व्हाट इज मेथड नंबर 2? मेथड नंबर 2 इज दैट आपको अगर मिक्सचर का एनर्जी निकालना है, मिक्सचर का, तो आप ऐसा करना, F mix by 2 nRT लिख देना, बराबर, करेक्ट, श्योर, गुड। हाउ डू फाइंड आउट F mix? हाउ आर यू सपोज टू फाइंड आउट F mix? एंड व्हाट इज N? व्हाट इज N हियर? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो F mix और N को भी N mix लिख दो। पर प्रॉब्लम है कि हाउ डू यू फाइंड आउट F mix? You know what is the degree of freedom of mixture of gas? N1 F1 plus N2 F2 upon N1 plus N2, ऐसा आता है। What is the number of moles of first gas? 3. Which is the first gas? Oxygen. Degree of freedom 5. What is the number of moles of second gas? 5 and monatomic to 3. Number of moles of first is 3 and second is 5. This is 15, that is 15, 15 and 15, 30, 30 by 8, 30 by 8, which is 15 by 4. तो 15 by 4 ये आ गया ऐसा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, therefore energy of mixture is F mix. What is F mix? 15 by 4 और divide by 2. Total number of moles कितने हैं, 8, और RT 4 into 2 is 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 15 RT। या तो ऐसा सॉल्व कर लो या वैसा। आई वुड एनी टाइम प्रेफर दिस मेथड, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, करेक्ट। बट